Hello everyone, Namaste and welcome back to another episode of our conversations with wedding resorts and destination properties. Today we are at Patlidun Safari Lodge at Jim Corbett. This is a beautiful property located at Mohan area, which is about 15 minutes from the Kala Zone Gate and about 30 minutes from Ramnagar. I am with Prashantji, who is the operations manager here, and he takes care of the entire hospitality at the resort. Namaskar, Prashantji, and welcome to our Namaskar, podcast. namaskar. It is indeed an amazing feeling to be back again at Patledun today. Thanks for hosting us recently over the fam trip you organized beautifully. Thank Prashantji, before we begin ahead, please tell me something about yourself, about your career, you. Right. how you have come to Yeah, where you are. definitely it has to be started like that only. So, namaskar to everyone. Uh, as my name is Prashant, and I have more than 16 years of experience in hospitality industry. Currently working as a operation manager in Partridun Safari Lodge. It have been definitely and nice and definitely with the greenery and all. It is always pleasure working with kind of environment and all, and healthy environment you can see. So that's how the nature interact me, and that's how I'm in Jim Corbett. That's amazing to know, Prashantji. So, Prashantji, throw some light on Patledun. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा वही रहेगा जो हर किसी का रहता है. Right. Why Patledun? What's the meaning of this name? So partly done basically it is then if you go to name of the behind of this. So name basically it is collected from the partly done. It's a narrow valley. Mhm. Like if you go and see there will be the narrow valley that's called partly dune. So that's how it has came, and we have named it the partly dune Safari Lodge. Yeah, the Safari Lodge basically why we are at Safari Lodge, because we are very deep into the jungle. Mhm. Right. Initially, we have started with the 12 room. Now we are into the 77 room. Still, we are follow the same culture of the that lodge, but now we are into the luxury segment. हाँ जी. And yeah, the luxury segment. That's how we have many places for the now. As Jim Corbett, as Modi said, Modi sir said, कि now it's going to be destination wedding. So that we thought, why not? So that's how we are into the wedding now. No, it has indeed because earlier it used to take I think about 7 to 8 hours to reach Jim Corbett from Delhi. Right. बट जो अब मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है उसकी वजह से वाया मुरादाबाद हम जब आते हैं काशीपुर होते हुए तो इट टेक्स अबाउट आई थिंक 5.5 to 6 hours to reach Patlidun 100%. and 5.5 hours for Jim Corbett, say suppose Garjia, if I talk about the other properties which are there. Right. So the driver is definitely very comfortable now. एंड अभी भी रोड्स पे काम चल रहा है. अगर हम काशीपुर से जब हम मुड़ते हैं मुरादाबाद से काशीपुर के लिए तो वहाँ पे भी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है. एंड ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो ही रहा है धीरे धीरे. 100% सर. वो एक्चुअली जिम कॉर्बेट को लाइमलाइट देखिए. जिम कॉर्बेट अभी से लाइमलाइट में नहीं है. जिम कॉर्बेट बहुत पहले से लाइमलाइट है, बट स्टिल अभी जिम कॉर्बेट को और लाइमलाइट में लेकर उनका इंफ्रा पे जरूर काम हो रहा है, और आगे चल के बहुत और अच्छा काम होने वाला है. जिससे कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों का एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली जब आपका इंफ्रा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इजी टू बिकम. जी. सो जैसे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पे आज दूसरी बार आ रहा हूँ, मेरे को तो काफ़ी कुछ पता ही है अभी, बट थोड़ा सा आप यहाँ के जो रूम कैटेगरीज हैं और थोड़ा सा मड हाउस के बारे में भी प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दैट. बेसिकली यस, जब हमने स्टार्ट किया था पार्टली दून विद द 12 रूम्स, तो इनिशियली हमारा ये था कि गेस्ट को आना है, हमको उनको इस लेवल का एक्सपीरियंस क्रिएट कराना है. इट इज जस्ट नॉट रूम के गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं जी. और जस्ट आके रुके. इसको थोड़ा कट कर सकते हैं बीच में. तो हमने जैसे 12 रूम से सर हमने बताया कि स्टार्ट किया था. हाँ जी. 12 रूम से हमारा सिर्फ एक ही फोकस था कि हमारे जो गेस्ट आए, रूम्स हर जगह हैं, सर्विसेज हर जगह मिलती हैं, खाना भी सब कुछ मिलता है. हमको सिर्फ ये करना था कि हमारे गेस्ट जो यहाँ पे आए, जो हम उनको एक्सपीरियंस क्रिएट करें, वो एक्सपीरियंस उनको कहीं पर मिली. सो पार्टली तो नोन फॉर द क्रिएटिंग द एक्सपीरियंस, और को हम गेस्ट को एक्सपीरियंस कराते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास 65% ऐसे कस्टमर है जो रिपीट्स हैं. हाँ जी. राइट सर. क्यों है? क्योंकि उसके पीछे हमारे 200 लोगों की टीम है. जी. हाँ. सो वी पर्सनली टेक केयर द गेस्ट. हम हर एक गेस्ट को फोकस करते हैं, हमारे गेस्ट की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, सारी रिक्वायरमेंट को फिल की जाती है. उसके अलावा भी हमारी नेचुरलिस्ट टीम है. 7 से 10 लोगों को नेचुरलिस्ट टीम, जिनका काम ही है कि गेस्ट के साथ कनेक्ट रहना है, उनको एक्सपीरियंस कराना है, उनको एक्सपीरियंस कराना है हमारे नेचर के बारे में, हमारे अपने फ्लोरा फौना, हर एक चीज के बारे में बताना कि हाउ नेचर कनेक्ट विद द ह्यूमन. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड.
फिर हम आगे चल के 24 रूम में हुए. नाउ वी आर इनटू 77 रूम. 77 रूम में हमारे पास 7 कैटेगरीज के रूम हाँ है. जी. स्टार्ट विद द सुपीरियर रूम्स, जी. सुपीरियर जंगल रूम, देन वी हैव अ जंगल कॉटेज, देन वी हैव अ लग्जरी, देन वी हैव अ सिग्नेचर, एंड वी हैव प्रीमियम लग्जरी, एंड वी हैव पार्टी रूम विला. जी. सो दैट्स हाउ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द रूम. ईच रूम के जो अंदर है, हर रूम की स्पेशलिटी अलग है. जब आप रूम के अंदर इंटर करेंगे, आपको हर एक रूम में आपको स्पेशलिटी मिलेगी. जी. हमारे हर रूम में थीम्स है. जैसे आप रूम में जाएंगे, किसी रूम में पीकॉक की थीम है, हाँ जी. किसी में एलिफेंट्स की थीम है. जी. सो आर लाइक ऑनर सच ए पैशनेटेड अबाउट द हॉस्पिटैलिटी. उन्होंने अपने इसको बच्चे की तरह पाला है. जी. हर एक छोटी से छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़ी चीजों को लेके लाके कि वो गेस्ट को एक्सपीरियंस हो. हाँ जी. राइट. उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कराने के लिए इसको फिर ऐसे धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं. नाउ वी आर सिटिंग विद 77 रूम विद द रेडी विद द वेडिंग एंड ऑल. आल्सो अब हम आते हैं वेडिंग्स में. सो वेडिंग में आने का जो मतलब है, हमारे पास बहुत प्यारा लॉन है जी. 30,000 स्क्वायर फीट का लॉन है. हाँ जी. बहुत शानदार हमारा व्यू है. जो आप देखो पूरा वे अपना हिल्स का पूरा व्यू आता है यहाँ से. हमारे पास जो पूल डेक है, वन ऑफ द बेस्ट पूल डेक इन जिम कॉर्बेट. नो डाउट अबाउट दैट. या तो मैं यहाँ पे कुछ उसकी थोड़ी सी इमेजेस वगैरह बीच में ऐड करूंगा, बिल्कुल जिससे बिल्कुल हमारे जो व्यूअर्स है सारे, हमारे जो हाँ, गेस्ट हैं, वो भी उस चीज को देख पाए, एक्सपीरियंस ले पाए, छोटा ब्रीफ सा. डेफिनेटली उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा जो हाँ मैं जी. बोल रहा हूँ. दिस इज बिल्कुल, रियलिटी एंड नॉट. एंड प्लीज ऐड द रूम एज वेल आल्सो. जो जी, हमारे जी, पास बिल्कुल. जैसे रूम्स की कैटेगरी है उनके भी. तो ऐसे करके उनको डेवलप इस लेवल पे किया है कि अब जब हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, नो डाउट उनको एक्सपीरियंस 100%. और ये मैं ऐसे एज ऑपरेशन मैनेजर नहीं बोल रहा हूँ. ये एज आप जब आएंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, वो आप खुद बोलेंगे कि हाउ वी आर. हमारे जितने लड़के हैं, हमारे जितने बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जितने हमारे पास कलीग्स हैं, स्टाफ हैं, दे वर्क फ्रॉम द हार्ट. उनको ये नहीं लगता कि चलो काम करने के लिए 8 घंटे काम कर लिए हैं, चलो ड्यूटी खत्म करके घर आ रहे. नहीं, जब तक वो अपने पोजीशन में खड़े हुए हैं, दे विल वर्क फ्रॉम द हार्ट. आपको हमेशा स्माइल मिलेगी, गेस्ट अटेंशन टू डिटेल रहेगा, सारे गेस्ट से बात करेंगे, सब मिलेंगे. सो इट्स ऑलवेज पर्सनल टच इज ऑलवेज द मेन फोकस टू अस. एंड आई थिंक यहाँ पे 95% आपका स्टाफ सारा लोकल ही है, 95%. रामनगर से और काशीपुर से. बिल्कुल बस बिल्कुल 5% है जो हमारे जैसे भूले बिसरे दिल्ली से यहाँ पहुंच गए आपके पास. बिल्कुल. वो थोड़ा जो एडवेंचरस करना चाहते हैं हाँ जी, बाहर से, जी. तो ऐसे लोग आए हैं, डेफिनेटली हैं. और उनका भी कहीं ना कहीं इनपुट है. जी. तो वो भी, उनका भी हमारा एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता है. तो हमारे भी जो हमारे लोकल स्टाफ हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए, Correct, उनको correct. बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए, दैट्स हाउ हमको कुछ चीजें भी जरूरत होती हैं. तो वहां से उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने स्टाफ में डालना, उनको वो चीज दिखाना, समझाना कि ये कैसे होती है, कैसे जी. करवाना है. सो दैट्स हाउ. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक एक जो बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर अपनी प्रॉपर्टी में है यहाँ पे, वो आपका डिस्कोथेक है. Yes. बिकॉज जिम कॉर्बेट आते ही सबसे पहला जो क्वेश्चन हर क्लाइंट का आता है कि यार हमारे को तो आफ्टर पार्टी करनी है, जिम कॉर्बेट में 10 बजे के बाद पार्टी कैसे होगी. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली प्रॉपर्टीज जो इसने कोर जंगल में होने के बाद भी जहाँ पे आप 3-4 बजे तक पार्टी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द साउंड प्रूफ डिस्कोथेक. राइट. सो जो वेडिंग में पर्पस आने का था सर, हम देखिए हमारे पास जब गेस्ट आते हैं तो उनका रहता है 2 कंसर्न. एक तो यहाँ पे आ गए तो जो हमारी प्रॉपर्टी है, पहले थी हमारी प्रॉपर्टी फेंसलेस. हाँ जी. तो गेस्टों को लगता था कि एनिमल्स, कोई भी जानवर आ जाता था, तो जी. उसको लगता था कि फील सेफ नहीं होता था. जी. हम अपने गेस्ट को इतना ज्यादा बताएं, उनको भरोसा दिलाए उस पर, जी. जैसे आप रह के हमारे पास एक्सपीरियंस करिए. और उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस करने के बाद बोला कि नहीं, जी. यू आर राइट, फिर लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे तो हमने उसको प्रॉपर्टी को हमने फेंस कर दिया. डेफिनेटली जो दिखता है वही समझ में आता है गेस्टों जी. को. तो हमने उसके लिए हमने फेंस लगाई, पूरी प्रॉपर्टी को फेंस कर दिया कि चलो हम फेंस के कवर अप कर लेते हैं. अब हम आते हैं वेडिंग पार्ट में. जैसे मैंने बताया 30,000 स्क्वायर फीट का हमारा ब्यूटीफुल लॉन है, हमारा बहुत अच्छा पूल डेक है. हाँ जी. सिमिलरली हमने बहुत अच्छा बैंक्वेट भी बनाया है. जी बिल्कुल. 7,500 स्क्वायर फीट का जो हमारा बैंक्वेट है. थीम जो है कल्चरल बेस है, उत्तराखंड कल्चरल बेस पे हमने बनाए हैं. जी. बट आप जब उसके अंदर घुसते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपको रॉयल एक्सपीरियंस कराता है. करेक्ट करेक्ट. राइट. आप इंटर करते ही यू फील लाइक वाओ, कहाँ पे आ गए. It is the best banquet halls in the entirety of Jim Corbett right now. वेरी ट्रू. सो वहाँ पे हमने बहुत सारी फैसिलिटीज की तरह की रखी हैं. वहाँ पे हमने प्री फंक्शन एरिया इसलिए अलग बना दिया है कि गेस्ट आए हैं तो हमारे अंदर का फंक्शन डिस्टर्ब ना हो. प्री फंक्शन एरिया अलग एरिया बना है बैंक्वेट हॉल के फंक्शन चलने के लिए. आल्सो हमने ऑपरेशनली उसको ऐसा बनाया है कि जब हमारा बैंक्वेट चलेगा, हमारा कोई भी, हमारे पास 10 वेन्यू है टोटल वेडिंग में,
उस 10 वेन्यू को हमको ऑपरेट करने के लिए हमने किचन भी वहीं पे बना के रखे, जी। वॉशरूम भी वहीं पे बना के रखे हाँ हुए हैं। वॉशरूम हमारे गेस्ट को सर्विस में डिले नहीं होना चाहिए, सर्विसेज डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ऑल किचन ईच हमारे जितने वेन्यू वहाँ पे है। एंड आई थिंक एक सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इस प्रॉपर्टी का, जो सबसे मेरे को अच्छी चीज़ लगती है, आपका प्रॉपर्टी पे वेलकम हो जाता है मुहान पे ही, पार्किंग पे ही, बिकॉज जो आपने वहाँ पे चेक इन फैसिलिटी बनाई है एंड वेलकम फैसिलिटी वहाँ पे जो बनाई है, जी, सो गेस्ट का एक्सपीरियंस पार्टली उनके लिए वहीं से शुरू हो जाता है। राइट। एंड उसके बाद जो 10-15 मिनट का ऊपर का सफर है 3 किलोमीटर, जिसमें Right. 2 किलोमीटर मोहन की रोड है एंड उसके Right. बाद 1 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता, बिल्कुल। जिसके लिए आपके पास अमेजिंग आपने फॉर्च्यूनर्स रखी हुई हैं, सो राइट, लग्जरी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर, राइट, एंड दैट्स एन अमेजिंग पार्ट। राइट। And I'm really happy कि अभी shortly MD sir will be joining us. Yes, he will And, join us, and it will be a valuable conversation for We us. will be able to get his idea behind the story of Patlidun. 100%, 100%. Also, now we are coming to the discotheque. हाँ जी, डिस्कोथेक बनाने का जो पर्पस हमारा ये था कि आपने बोला कि चलो हम जा रहे हैं प्रशांत के पास वेडिंग करेंगे। हाँ जी, हमने बोला सर मैं 10 बजे के बाद में आपको 10:30 बजे जी। के बाद ओपन एरिया में म्यूजिक डेफिनेटली जिम कॉर्बेट में हाँ जी, गवर्नमेंट का रूल है नहीं कर जी। सकते। ठीक है, तो इस बिहाफ में हमने बनाया है, पर्टिकुलरली रीजन ही उसी का है। आप हाँ गेस्ट आता है, आप इंटर करते हो, यू फील लाइक नेक्स्ट वर्ड, दूसरे वर्ड में कहीं चले गए हाँ हो, बिल्कुल, है ना। वो आप जैसे इंटर करते हो वो आपको अलग एक्सपीरियंस कराता है, वो वाइब ही अलग है। फिर आप वहाँ पे चालू करो, आप चाहे सुबह रात से पूरी सुबह तक करना है फंक्शन, पूरी रात तक एंजॉय करना है, बार चलता रहेगा, वहाँ पे मिडनाइट स्नैक्स चालू हो जाएंगे, हाँ जी। आपका डीजे कंटिन्यूसली, तो आप फ्लो आपका टूटने वाला नहीं है, एंजॉय करो थ्रू नाइट। ये प्रॉपर्टी के अंदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बहुत हैं एंड मैं अर्ज करूंगा मेरे जितने भी सारे हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सबको कि आप यहाँ पे फंक्शन करो या ना करो, बट एक बार जरूर आप पाटलिपुत्र आके एक्सपीरियंस करो, 100%. बिकॉज वंस यू आर हियर Yeah, you won't like to go to any other property ever after. true, true. That's a fact. 100%, 100%. It's all about experience. आप यहाँ पे आके, जहाँ पे हम लोग itself बैठे हैं, that's प्लेस कॉल्ड थुलगुड़ी। जी, तो ये प्लेस में आप जब बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं, शाम सुबह उठ के आप जब यहाँ पे बैठ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 6:30, यू विल हियर लॉट ऑफ बर्ड साउंड्स। जी। इतने प्यारे आपकी सुबह स्टार्ट होती है, दिन आपका इतना अच्छा आता है विद द मेनी फंक्शंस, कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, हाईटी चल रही है, लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रहे हैं, तो दिन आपका पाटलिपुत्र में ऐसे खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि शायद चौथी नाइट भी हम स्टे कर लेते हैं। करेक्ट। सो दैट्स हाउ द पाटलिपुत्र। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, एंड we'll just welcome MD sir now. Yes, yes, yes. And we'll continue this conversation. आपसे इनपुट साथ में लेते रहेंगे हम। Definitely, definitely. जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम दिया हमारे को अपने प्रॉपर्टी में वापस इनवाइट करने के लिए। एंड थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज बताइए हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। आप मतलब मेरे बारे में ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ? नहीं सर, आपके बारे में एज अ पर्सन, मिस्टर अग्रवाल कौन है? आपने इतना अच्छा विजन देखा, तो उस विजन के पीछे जो माइंड है उसके बारे में। एक्चुअली मैं शुरू से ही रामनगर रहता हूँ। हाँ जी, जिम कॉर्बेट जो है, जब आप आते हैं तो रामनगर के थ्रू ही आप आते हैं। जी, तो मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ, तो मैं यहाँ देखता था कि यहाँ ग्रीनरी वगैरह तो रहती है, हाँ जी। क्योंकि जिम कॉर्बेट का जंगल बहुत बड़ा है अपने आप में। जी, तो ऐसा मतलब मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो इस बिजनेस में हैं, हाँ जी, रिजॉर्ट जो अपने चलाते हैं। तो मुझे भी मतलब मेरे कभी दिमाग में नहीं था कि मैं कभी इस बिजनेस में आऊँगा, क्योंकि हम लोग तो अपना और बिजनेस कर रहे थे, अपने स्कूल्स वगैरह है मेरे, जी, तो मैं उसी में था। पर हम लोगों ने फिर 3-4 लोगों ने मिलके एक बार एक प्लान बनाया कि फिर हमने यहाँ कुछ लैंड वगैरह ली, और दिमाग में ये था कि कुछ यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह बना के कुछ सेल करते हैं। हाँ जी, तो उसके हिसाब से हमने इस चीज़ को डेवलप करना शुरू करा। जी, लेकिन जब थोड़ा बहुत वो शेप में आने लगा, हम लोगों को बताने लगे कि हम ऐसे ऐसे कॉटेज बनाने वाले हैं, तो उसके प्राइस बहुत ऊंचे हो रहे थे। हाँ जी, तो फिर पता नहीं क्यों, मतलब जैसे हमारा, क्योंकि ये फोटे तो था नहीं, जी, तो हमें ये अंदाज ही नहीं था कि हम इसको बेचेंगे कैसे। हाँ जी, तो 1-2 ग्राहकों के अलावा कोई ग्राहक मिला ही नहीं। जी, तो लगा कि भाई करना क्या चाहिए इसको। तो फिर सारे लोगों ने तय करा, 4 लोगों ने मिलकर, कि भाई हम इसको सेल कर देते हैं, हाँ जी, इसको पूरी लैंड को सेल कर देते हैं। जी, तो हम लोग बैठे हुए थे घर में, बस ऐसी मेरी वाइफ से मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई ये इतनी अच्छी लैंड है, इतनी सब कुछ ग्रीनरी है चारों तरफ, तो क्यों ना हम इसको ले लें। हाँ जी, तो हमने बस इसको ले लिया है, जी, अपने पास ले लिया। अब लेने के बाद कुछ बेचैनी सी होने लगी कि भाई करना क्या चाहिए हमें। हाँ जी, तो सब जगह तो यहाँ रिजॉर्ट है। जी, उस समय करीब जिम कॉर्बेट में 225 रिजॉर्ट थे। जी,
जो जिम कॉर्बेट के साथ काम करते थे। हाँ जी। तो हमें लगा कि भाई ठीक है, हम भी कुछ सोचते हैं इसके बारे में, पर दिक्कत ये थी कि ये बड़ा ऑफ रूट है। हाँ जी। और अगर आप जैसे दिल्ली में अगर आप बात करें तो कनॉट प्लेस बिल्कुल जी। सेंटर प्लेस है, ऐसे ही यहाँ पे ढिकोली है हाँ जी। जहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स हैं। जी। तो मुझे ये लगता था कि भाई इस तरीके का रिजॉर्ट बनाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ जी। और मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे लगती थी कि जो यहाँ पर आता है वो शायद शांति के लिए आता है, हाँ जी। उसको अच्छा लगेगा, कुछ ग्रीनरी वो देखेगा, सारी चीज़ों को। तो मुझे ये था कि भाई कुछ इस तरीके की चीज़ डेवलप करी जाए। जी। तो हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू की। फिर जब हमें लग गया तो हम नॉर्थ अफ्रीका गए, जी। साउथ अफ्रीका गए। हमने देखा कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी किस तरीके की हाँ जी। बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ जी, करेक्ट। तो मुझे लगा कि हम ऐसा कुछ डेवलप करते हैं। तो वहाँ से ये ख्याल शुरू हुआ और फिर तो हम घूमते चले गए। ऐसी बहुत सारी मध्य प्रदेश में है कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हाँ जी। बहुत अच्छी, तो वो हमने देखी। हाँ जी। फिर हमें लगा कि हाँ, इस तरीके का कुछ किया जाए। जी। तो फिर तो ये आइडियाज़ बनते चले गए। हमने कुछ लोग इस तरीके के एंगेज करे कि एक मेरे पास नेचुरलिस्ट थे, बच्ची नाम है उनका, और इंडिया के बहुत पॉपुलर नेचुरलिस्ट में से एक है। हाँ जी। हाँ जी। उनको हमने अपने साथ रखा, हमारे फैमिली रिलेशन भी थे उनसे पहले। फिर हमने एक हरिकेश नाम का एक आदमी है हाँ जी। जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था जी। और ढिकाला के लिए काम कर रहा था वो। जी। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे, जो ग्रास जो यहाँ ख़त्म हो गई हैं, उनको दोबारा से वो रिवाइव करने के लिए काम कर रहे थे। हाँ जी। तो मैंने उन्हें एंगेज कराया। जी। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम करो जिससे यहाँ पे कुछ बर्ड्स आएँ, जी। यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज आएँ, जी। क्योंकि जिम कॉर्बेट तो वैसे टाइगर के लिए जाना जाता हाँ है, जी। लेकिन टाइगर 1250 किलोमीटर में हमारे हाथ में नहीं है करेक्ट। कि हम किसी को दिखा पाएँ या हम कमिट कर सकें हाँ जी। कि हम टाइगर दिखा देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बाई चांस है जी। और इसीलिए वही एक खूबसूरती है टाइगर की। जी। जब वो अचानक दिखता है तो लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। हाँ जी। पर ये बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ये ऐसी हैं कि ये रूटीन में आती हैं चीज़ें। हाँ जी। तो हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी और उस तरीके के हमने करीब यहाँ पर 3000 पेड़ लगाए, जी। जो आज आपको दिखते हैं। जी। तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी स्टडी है कि किस मंथ में कौन से पेड़ों में कौन सी बटरफ्लाइज आती हैं, हाँ जी। किस कलर की होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। वो एक चेकलिस्ट है हमारे पास। बर्ड्स के ऊपर हमने चेकलिस्ट तैयार करी। हाँ जी। तो वहाँ से ये सब चीज़ें आइडिया जनरेट होता चला गया और हमें ये लगा कि भाई हम जितना भी करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में। जी। और हमेशा से एक हमारे दिमाग में एक आइडिया ये रहा कि क्योंकि ये जंगल है और ये जंगली जानवर को ये नहीं पता होता कि आपके रेजिस्टर्ड लैंड है हाँ जी। है ना, या ये जंगल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो कहीं भी घूम सकता है। जी। तो हमने कहा जो उनका घर है, हम उनके घर में जा रहे हैं, हाँ जी। तो उनको उनका घर बदला हुआ नहीं नजर आ रहा। जी। वो जब भी आए तो उनको ऐसा लगे कि जैसे बकराकोट पहले था वैसे ही आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से हमने ये बात डेवलप। एंड आपके सर मड हाउस की जो एक सबसे अच्छी डिस्टिंक्टिव चीज़ है, जो आपने वहाँ पे नेस्टिंग की विंडोज बनाई हुई हैं, वो उनके नेचुरल हैबिटेट को वैसे ही छोड़ के, एंड हम जो बाहर से नॉर्मली होता है कि हम जब सफारी वगैरह में जाते हैं या किसी जू में जाते हैं तो जानवर केज में होता है, हम बाहर होते हैं, बट यहाँ पे ये समझ आ जाता है कि ये उनका घर है, हम केज में हैं, वो खुले घूम रहे हैं। एंड किस तरह से हम उनकी नेस्टिंग को देख सकते हैं, जो आपने बहुत मतलब एक छोटी सी डिटेलिंग है जिसका आपने बहुत बखूबी भी आपने ख्याल रखा है। एंड एडिशनली मैं अभी वही चीज़ देख रहा था, अगर हम हर रूम को देखें, आपने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि फैमिलीज आती हैं, बच्चे हैं, तो हर रूम में आपकी कोशिश रही है कि एक सोफ़ा कम बेड रहे, और जिस रूम में नहीं कर पाए आप सोफ़ा कम बेड, वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा बेड को बाहर पहले से प्लेस करा हुआ है कि इमीडिएट बेसिस पे अंदर लग सके। तो ये आई थिंक छोटी छोटी डिटेलिंग बड़े बड़े 5 स्टार्स नहीं कर पाते। मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग्स का काम है एंड मैं हर ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक बड़े बड़े होटेलियर्स ने मिस कर दी है, जिस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखा है। एंड ये बड़ी ही तारीफ वाली चीज़ है। देखिए क्या है ना, मेरी वाइफ मेरे साथ इसमें लगी रहती है। हाँ जी। उनको हमेशा से ये रहता है कि भाई गेस्ट यहाँ क्यों आता है, हाँ जी। उसको जो चीज़ें घर में नहीं मिल पाती जी। वो उसको यहाँ मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो हमने हर उस चीज़ का ध्यान रखा है यहाँ पर कि गेस्ट को ये लगे कि अगर हम आए हैं कुछ एक फ्री रहने के लिए, हाँ जी। मौज मस्ती के लिए, तो उनको वो सारी चीज़ें यहाँ मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। बस सिर्फ जंगल की तरीके से। हाँ जी। ये हमने एक उसमें रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगाई है। जी शहरों में हम ना एक से एक अच्छे होटल्स में जाते हैं, बिल्कुल जी। वो मुकाबला हम कभी कर ही नहीं सकते। 5 स्टार में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस तरीके की वो चीज़ें यूज़ करते हैं, हमने वो कहीं नहीं करी है।
जी क्योंकि वो तो वहाँ ही बहुत सारी है। जी अब दिल्ली का कोई आदमी उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास नहीं आता, तो उसको चाहिए जैसे खाट चाहिए उसे जी। वो वहाँ नहीं मिलती 5 स्टार होटल में, तो हमने वो यहाँ रखी हुई है। उनके बच्चे आते हैं, उनको पूल नहीं मिल पाते वहाँ पे अपने जी। पर्सनल पूल, तो हमने वो पर्सनल पूल यहाँ दिए जी। हुए हैं। उनको जंगल के साथ जो है ना हमने कहीं न कहीं अटैच करके रखा, जैसे आपने हमारे एक सिग्नेचर विला है, हाँ जी तो आपने वहाँ हैंगिंग बेड देखा होगा। जी बिल्कुल। तो हैंगिंग बेड में बैठ के वो उस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं कि सामने पेड़-पौधे हैं, हाँ जी तो उसको वो आराम से निहार सकते हैं। जी तो इससे ना एक मन को सुकून मिलता है। आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, वो उसी से तो दूर बच के आते हैं ना वो यहाँ पर। बिल्कुल तो ना बिल्कुल। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं। एंड तो हमारा फोकस उसी चीज़ पे रहता है। दूसरा क्या है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी ये वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी है। हाँ जी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें जानवर को या पशु-पक्षी को कहीं भी ऐसा लगे कि हमने उनको बाँधा है। जी एक्चुअली हम उनके घर में हैं, बिल्कुल, तो बंधे हुए तो हम रहेंगे। बिल्कुल जी। जैसे एक मेहमान आता है, तो उसको थोड़ी-सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हर हाँ जी। जगह एक्सेस नहीं कर सकता, हाँ जी है ना? और पर आप अगर अपने घर में हो, तो जी। आपको हर जगह आप जा सकते हो, हर कोने हाँ में जी, आप जा सकते हाँ हो। जी। तो यही थीम हमारी है कि जो हमारे गेस्ट आते हैं, उन उनको हमने बाँधना है। जी वो तो भाई कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्ट हों, लेकिन ये तो जानवर का ही घर है, जी पशु-पक्षियों का ही घर है, तो उनको हमेशा खुला रखना है। तो वही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने मड हाउस में कहा, तो वही एक आइडिया था कि वो अपने मन से आए घोंसला बनाने। हाँ जी हम उनको दूर से देख पाएँ, उनको हाथ ना लगा पाएँ, हाँ जी उनको डिस्टर्ब ना कर पाएँ, जी है ना? और आप देख पाएँ कि नेचर किस तरीके से काम करती है। जी। तो यही हमारा कोशिश है। एंड ये सर आपने जैसे बताया कि हम जंगल के अंदर हम उनके मेहमान हैं। इस चीज़ को मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था जब लास्ट मंथ आपने हमें इनवाइट किया था जी। प्रॉपर्टी को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए एज अ वेडिंग प्रॉपर्टी। मैं सुबह जिस दिन हमारा चेकआउट था, मैं बाहर अपना जैसा आपने बताया कि लग्जरी कॉटेजेस में जो खाट है, मैं बाहर खाट पे बैठा था। मेरे बालकनी के बाहर 2 जकॉल कब्स आ गए थे एंड वो फ्रीली घूम रहे थे। मैं उनको देख के मैं अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था कि मैं केज में हूँ, अंदर से देखो शांति से, इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये इनका घर है। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, प्लस आपके जो कुछ विलाज ऐसे हैं जिनमें ऊपर आपने स्टार गेजिंग बेड्स लगाए हुए हैं पूरे कवर्ड, हाँ। एंड आई थिंक वो एक बड़ी डिस्टिंक्टिव चीज़ है जो हमारे को देखने को नहीं मिलती कॉर्बेट की किसी भी प्रॉपर्टी में। और एक्चुअली में ना ये चीज़ हमारे ज़माने में तो थी। हाँ जी हम लोग क्या करते थे, अपनी छतों पे सोते थे। हाँ जी तो आप लोगों की पीढ़ी में वो सब चीज़ मिस हो गई। बिल्कुल क्योंकि अभी वो सेफ्टी, सिक्योरिटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं हाँ जी कि जिसकी वजह से लोग डरते हैं छतों में जी। सोने के लिए। पर हमने अपने बचपन ऐसे ही निकाला है। जी हम छतों पे सोते थे, सुबह 4:30-5 बजे जब सनराइज़ होता था उसी से आँख खुलती थी, या बर्ड्स की आवाज़ों से आँख आँख खुलती थी। वही आइडिया हमने यहाँ पर दिया है। जी हम उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ जी पर हमारा सोचना ये है कि अगर रेनी डे है, तो आप पूरा रेन का मज़ा ले सकें, जी वहाँ सो सकें आप आराम से। ऐसे ही अगर आप खुले में सो रहे हैं, तो आपको पूरा वो आनंद आना चाहिए जो एक बचपन में हम लोग लिया करते थे। हाँ जी तो उसी चीज़ को हमने कोशिश करी है, जी। और लोग उसको काफ़ी एन्जॉय करते हैं। ये सब बिल्कुल पूरी प्रॉपर्टी ओवरऑल इतना मज़ा आता है यहाँ पे आके। एंड आज भी आके यहाँ पे आके बस हमेशा यही लगता है कि कम से कम 1 हफ्ता आके कट ऑफ होके पूरी दुनिया से यहाँ रहें। एंड ऑल्दो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है बिकॉज जंगल के बिल्कुल हम बीच में हैं, लेकिन ये भी चीज़ आपने बड़ी अच्छी वो करी है कि हर कॉर्नर को आपने वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है कि हम डिस्कनेक्टेड भी हैं दुनिया से लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहें, क्योंकि आज की डेट में बिना इंस्टाग्राम और फेसबुक के हमारी जनरेशन तो नहीं चल पाती जब तक हम स्क्रॉलिंग ना करें। एंड पूरी प्रॉपर्टी में हर पॉइंट के ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपने दी हुई है, इसलिए जो बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ आपने करी हुई है। एक्चुअली में बिज़नेस क्लास के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी कहीं न कहीं ऐसे लोगों के बिज़नेस चल ही रहे हैं, जी तो उनको ये रहता है कि भाई कहीं न कहीं कनेक्ट रहें हम जी। लोग से अपने। तो जो इम्पोर्टेंट कॉल्स आती हैं, वो सब आ ही जाती हैं उनके हाँ पास, जी और उनकी मर्ज़ी से आती है। जी अगर वो चाहते हैं डिस्टर्ब होना, तो वो हो सकते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल पर जनरली जो है ना, आदमी एक लोकल कॉल वैसे ही मिलाता है, व्हाट्सएप कॉल नहीं मिलाता। हाँ जी तो हमारी सोच यही थी कि भाई लोगों को एक सुकून के लिए अगर वो आ रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ वो जी। किस चीज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं, जी वो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमने वही एक कोशिश करी है। नहीं, आपने सब बहुत बढ़िया, आपने आपकी जो कोशिश है, हम तो चाहते हैं कि आप इस कोशिश को और बढ़ाते रहें। ऐसे आप और भी जगहों पे जाके अपने रिजॉर्ट्स बनाएं, पाटलिपुत्र की और फ्रेंचाइजीज बने जो दूसरी जंगल प्रॉपर्टीज है, जैसे रणथंभौर हो गया या कान्हा हो गया, वहाँ पे भी पाटलिपुत्र का नाम रोशन हो जैसे आपने यहाँ पे कॉर्बेट में किया है। एंड आप तब भी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे, एंड ये देख के भी बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी पूरी फैमिली कनेक्टेड है टीम के साथ। आपने अपनी टीम को पूरा ओपन हैंड दिया हुआ है कि वो ऑपरेट अपने हिसाब से करें। आपने उन प्रोफेशनल्स को हायर करा है जिनको आपने पूरा ओपन हैंड दिया है, लेकिन आप साथ में खुद भी कनेक्टेड हैं पूरा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली क्या है ना, जिस चीज़ के लिए लेके अगर हम साथ में चले हैं, हाँ जी तो उसको हम ही समझा सकते हैं लोगों को। जी पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जो पूरी टीम है आज, हाँ जी वो हमारे सोच को समझती है और उसी को जी। आगे बढ़ाती है। जी अभी हमने जैसे यहाँ पे आप देखते हो सारी चीज़ें,
बोर्ड वगैरह का आप सारा काम देख रहे हो, हाँ जी। ये सारा कलेक्शन है जी। हमारा। हमने ये भी एक बहुत अच्छी कोशिश करी है लोगों को समझाने की, अगर आप जैसे आप राजस्थान जाते हो हाँ जी। तो आपको वहाँ का कल्चर मिलता है जी। देखने के लिए। तो हमने ये बताया लोगों की उत्तराखंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है। हाँ जी। यहाँ की जो नक्काशी है वो थोड़ी अलग टाइप की है। जी। यहाँ के जो राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने अलग तरीके की नक्काशी करी है। हाँ जी। तो हमने वो सारे कलेक्ट करे। जी। एक स्लेट हमने यूज करी है जो 90s के टाइम में बंद हो गई थी हाँ गवर्नमेंट जी। की तरफ हाँ से। जी। तो हमने पुराने घरों से उसको कलेक्ट करके जी। और उसको हमने अपनी छतों पे यूज करा है, हाँ जी। ताकि वो सारा फील आप ले सको। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो आपको उत्तराखंड का फील भी मिलना चाहिए। जी। अब इसी चीज को हमने डेस्टिनेशन मैरिज के लिए तैयार कर रहे हैं हम, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि जी। देवभूमि में आप शादियां करो जाके, पवित्र भूमि में मानी जाती है हमारी उत्तराखंड। तो लोगों का एक क्रेज बढ़ा है यहाँ आने का। पर हमें फिर भी ये लगता है कि मैरिज भी हम उस तरीके से करें कि लोगों को प्रकृति का आनंद आए, जी। और वो जिस चीज के लिए कॉर्बेट जाना जाता है हाँ जी। उनके बीच में रह के वो उसी तरीके से शादी को एंजॉय कर सके। तो हम अब उसी कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारा पूरी वेडिंग फैसिलिटी की तरफ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हम सबका पूरा सपोर्ट आपके साथ है। एंड हमारी कोशिश ये बिल्कुल रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपके साथ शादियाँ करा सकें, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आई थिंक ये वाला एक्सपीरियंस इंडिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। ये बड़ा डिस्टिंक्टिव एक्सपीरियंस है जो सिर्फ और सिर्फ जिम कॉर्बेट में, पाटलिपुत्र में मिल सकता है। यहाँ के दूसरे प्रॉपर्टीज में भी नहीं मिल सकता जो एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश हमारी पूरी है कि आपके साथ हम जुड़े रहें एंड आप ऐसी ग्रोथ करते रहें, आप आगे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।